ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੀਕੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀਕੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ at 9052269109 9052269109 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ FM 91.9 ਪੀਕੇ ਜੀ। Thank you very much, Aman, and very good evening to all our listeners. जी अमन जी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋ ਚੇਂਜ to its benchmark interest rate ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ there is no change। ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀਗੀ because Reuters ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ for the leading Canadian economist, majority of the economists were of the opinion that the interest rate will be steady in this announcement, they will hold it and but minority of the economists ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ rate cut could be in the cards by the end of 2023। लेकिन आज जिस वक्त मैकलन साहब ने पूछा गया कि आगे का इंटरेस्ट रेट क्या है तो उन्होंने बड़ा ग्लोबल मेल का क्वेश्चन सी गया वाला तो ही आंसर्ड वेरी आई वुड से पॉलिटिकली घुमा फिरा के उन्होंने क्लियर जवाब नहीं दिता। पर उन्होंने यह कहता है कि इतना लंबा ऐलान ठीक नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन बट यस एट प्रेजेंट वी थिंक दैट द इंटरेस्ट रेट जो हैगा इत्थे रुकेगा बिकॉज जिस तरीके नाल उन्होंने इंटरेस्ट रेट बड़ी जबरदस्त दे केप्ट ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड सेटिंग इंटरेस्ट रेट जिन्हें हैवीली इन्फ्लुएंस किया सीगा वेरिएबल मॉर्गेज रेट्स नू और बड़े लोग परेशान होए सीगे 2.5 तो वधा के उन्होंने 4.5 तक लै गए सी 8 बार उन्होंने कंजैक्टिव वधाया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਇਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੂਅਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ 1.2 1.3 1.5 1.6 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ he says that yes I know that and we are well aware of these things जिस करके वो और अग्रेसिव नहीं चलना चाहते बिकॉज वो कह रहे हैं कि जो ये इंटरेस्ट रेट है जो बढ़ाना इसने बहुत अच्छा काम किया है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन को हमने काबू किया है 8.1% घट के या वो 5.2 तक आ गई है। अब आगे भी और ज्यादा कम होने की उम्मीद है और प्लस जिसे कहते हैं उनका ये भी मानना है कि उनको पूरी उम्मीद है कि बाय मिडल ऑफ दिस ईयर और थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर then they will catch up the target of 3% inflation। लेकिन जेडी कह रहे हैं कि by the end or in the beginning of 24 it can be somewhere around 2% that उनका target हैगा। That is the reason minority of the जेडी economists उन्होंने कहना हैगा कि by end of this year or beginning of 24 we may expect interest rate to go down। क्योंकि यहाँ पर एक बात बड़ी जरूरी है अमन की जरूरी नहीं है कि 2% इंटरेस्ट रेट आने के बाद ही वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। 2% इन्फ्लेशन आने के बाद जैसे ही अब आगे अगला जो इन्फ्लेशन का नंबर आने वाले हैं वो उसके बाद 2 बार अगर कम हुए ये 3% तक आ जाती है बाय द थर्ड क्वार्टर तो वो इंटरेस्ट रेट कम करने की तरफ उनका ध्यान चला जाएगा। और ऊपर से जिसे कहते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं अभी एम्प्लॉयमेंट का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया 35,000 और एम्प्लॉयमेंट आई तो ये सब बातें थोड़ी एक पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। जी अमन ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ व्हाट डज इट मीन फॉर एक्चुअली हाउसिंग मार्केट ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹ जी वेरी नाइस क्वेश्चन अमन। एक्चुअली क्या हुआ है कि ये लोगों को पिछले महीने से ही एक हिंट मिलना शुरू हो गया था कि इंटरेस्ट रेट अब और आगे बढ़ने वाला नहीं है। जैसे आपको याद होगा कि आज से 8 महीने पहले जब ये पता चलना शुरू हो गया था 10 महीने पहले कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हाहाकार मच गया बुरा हाल हो गया मार्केट प्राइस जो है गिरने शुरू हो गए बायर पीछे हट गए सेलर मार्केट में आए तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी तो वो क्या हुआ कि वो एक सेंटिमेंट्स होते हैं कंज्यूमर सेंटिमेंट्स
उस पर सारी गेम चलती है इकोनॉमी। तो अब क्या हुआ, जैसे अब ये पता चला कि इंटरेस्ट रेट रुक रहे हैं, अब ये बढ़ेंगे नहीं घटेंगे, तो वो बिल्कुल रिवर्स हो गया। बायर्स मार्केट में आ गए और सेलर्स रुक गए। अब उनको अब ये माना होगा कि अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, अब गिरेंगे, तो जी अब जब मार्केट बढ़ेगी तभी बेचेंगे। जो रोक सकते थे वो रोक रहे हैं, और जो बायर्स वो कहते हैं नहीं जी नहीं अब कीमत और बढ़ जाएगी, तो वो मार्केट में आ गए। ये बायर सेंटीमेंट, कंज्यूमर सेंटीमेंट है, वो जो है ना वो इस बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो इसका असर तो हमने महीना डेढ़ महीने पहले ही देखना शुरू कर दिया, जब द बायर्स वर देयर ऑन द मार्केट। अब ये मल्टीपल ऑफर के अंदर घर बिकने शुरू हो गए। अगर राइट प्राइस घर है, पहले क्या होता था जब लो प्राइस के बाद मल्टीपल ऑफर जाती थी, आज राइट प्राइस के और मल्टीपल ऑफर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट बैलेंस की तरफ जा रही है, विच इज ए वेरी गुड साइन। बल्कि ये डर है कि मार्केट कहीं सेलर की तरफ दोबारा ना चली जाए, विच कैन बी अगेन ए डिजास्टर। और ये डर है मुझे कि कहीं ऐसा हो ना जाए अमन, क्योंकि बात यह है कि जो गैप है ना इस वक्त कैनेडियन हाउसिंग जो पॉलिसीज है और इमिग्रेशन जो प्लान है, इन दोनों के अंदर तालमेल ही नहीं आपस में। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन एट ऑल बिटवीन दिस टू। ज्यादातर क्या होता है कि अक्सर, ज्यादातर नहीं, क्या होता है कि जैसे हमारी कैनेडियन इकोनॉमी है, इसमें इमिग्रेशन और डिमांड जो कहते हैं, इमिग्रेशन मतलब हाउसिंग डिमांड, नेचुरली चाहे वो रेंट हो चाहे वो खरीदना हो, वो डिसाइड कौन करता है, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट हर साल का एक टारगेट बना लेती है। जैसे अभी हमारी पॉपुलेशन जो है वो 39 मिलियन एक्सीड कर गई है। टू बी एग्जैक्ट 1 जनवरी को जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 39,566 1 जनवरी को, और उन्होंने 1 मिलियन से ज्यादा जो है ना न्यू अराइवल्स 2022 में हो चुके थे। अब इनके पास टारगेट हर साल का होता है कि कितने न्यू इमिग्रेंट आएंगे, लेकिन ऑन द अपोजिट जो इसका कहते हैं हाउसिंग सप्लाई है वो प्रोविंसेस पे डिपेंड करती है, और प्रोविंस के पास कोई साल का बजट नहीं। अभी देखो ओंटारियो गवर्नमेंट ने 10 साल का भेज दिया कि जी 10 साल का जो है ना हम लोग हमारा जो है टारगेट जो है ना वो 1.5 मिलियन हम घर लेकर आएंगे 10 ईयर। अब आउटडेटेड नहीं हो गया क्या वो 10 मिलियन में क्या होने वाला है, कितने इमिग्रेंट और आने वाले हैं, कितने नहीं आने वाले, क्या पता। तो ये जो तालमेल है ना इन दोनों आधारों का, फेड एंड प्रोविंशियल, ये होना बहुत आपस में जरूरी है। मिसमैच हुआ पड़ा आपस में बहुत जबरदस्त। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर देता हूँ। ये इंटरेस्ट रेट रुकना, इंटरेस्ट रेट कम होना, इसका इतना असर होने वाला ही नहीं है। नोबडी कैन स्टॉप इट। हाँ, जब जेब में पैसा ही नहीं होगा, खरीद नहीं पाओगे, रोटी के लिए अगाले पड़ जाएंगे, वो अलग बात है। पर जिनके पास है, मुझे बताइए कि अगर आप घर नहीं खरीद सकते तो सिर पे तो छत चाहिए। सिर पे छत चाहिए तो यानी कि किराए पे तो लोगे, कि किराए पे भी अगर नहीं मिल रहा क्योंकि किराए इतने बढ़ गए, क्योंकि मकान की कीमतें बढ़ गई, तो इन्वेस्टर भी अपने उस हिसाब से घर कम खरीदेगा। जब इन्वेस्टर घर कम खरीदेगा तो फिर डिमांड कम होने से जो वो नहीं खरीदेगा तो मार्केट अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, फिर वो खरीदेगा। जब कीमतें बढ़ती हैं उस हिसाब से रेंट बढ़ जाते हैं, जब कीमतें घटती हैं उस हिसाब से रेंट घट जाते हैं। अब एक बेचारा बायर जो नहीं खरीद पा रहा वो रेंट ज्यादा देके बैठ जाता है। अगर वो नहीं दे पा रहा तो 3 कमरे की जगह 2 कमरे में रह लेता है, 2 नहीं दे पाता 2 की जगह 1 में रहता है। पर छत तो सिर पे चाहिए। ये जो मिसमैच है ना, ये प्राइस को गिरने नहीं देगा। ये एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो G7 कंट्री के अंदर कनाडा की सबसे ज्यादा है, और कंस्ट्रक्शन कनाडा के अंदर इट इज वेल शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल हाइट्स। हिस्टोरिकल हाइट्स जो थे 1970 की अगर मैं बात करूं अपने तजर्बे से, तो 1970s के जो 5 डिकेड्स थे सॉरी, तब हमारे यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होती थी, उसकी जो ईयरली जो कंस्ट्रक्शन थी हमारे कनाडा के अंदर, वो थी $229,000 हाउसेज एनुअली। ये बात कर रहा हूँ 1970s की, जब हमारी पॉपुलेशन इससे 20 मिलियन के आसपास कहीं थी। तब हमारी कंस्ट्रक्शन जो थी 229,000 एनुअली थी, और जब हमारी पॉपुलेशन लगभग डबल हो गई है, अब हमारी कंस्ट्रक्शन पता कितनी चल रही है, 195,000 होम्स, यानी उस लेवल से भी कम। आबादी उससे कई गुना तेज बढ़ रही है, और न्यू कंस्ट्रक्शन घर जो बिल्ट हो रहे हैं उससे कई गुना कम हो रहे हैं, यानी कि मोर देन 10% लेस, और पॉपुलेशन कई गुना बढ़ गई।
तो ये जो गैप है ना दोनों का, इमिग्रेशन का, न्यू बायर्स का और सप्लाई का, वो जीने नहीं देगा जी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपके क्वेश्चन इतना अच्छा था कि मैं रुक नहीं पाया ये बातें करने। जोसेफ फिलोविच एंड स्टीव लेफ्लोर जो बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बड़े अच्छे कुछ रीजंस वगैरह उन्होंने दिए बहुत जबरदस्त, और उन्होंने कहा कि ये जो जब तक म्यूनिसिपैलिटीज, प्रोविंसेस एंड फेड्स आपस में मिलकर प्लान नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। देखो वो उनका ये कहना है बड़ी इंपॉर्टेंट, कनाडा's हाउसिंग शॉर्टेज वोंट एंड until immigration policies start reflecting the reality of our housing market। ये बहुत जरूरी है। हाउसिंग मार्केट की रियलिटी क्या है, वो उसको मैच करना इमिग्रेशन में बहुत जरूरी है। लैंड यूज कैसे होगा, कैसे ग्रीन बेल्ट के अंदर कुछ हिस्सा लिया जाएगा, कैसे वो जो इंक्लूसिव यूनिट एंड एक्सक्लूसिव यूनिट का जो रूल नया बना रहे हैं कब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे इन चीजों को जिसे कहते हैं रेड टेपिज्म को कैसे खत्म किया जाए, ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमन, ये हाउसिंग क्राइसिस और बुरा होगा मेरे ख्याल से। सॉल्यूशन तो मुझे नजर नहीं आती। ये आपकी बात तो बहुत लंबी इसकी मैं और कर सकता हूँ, लेकिन ये जवाब है मेरे ख्याल से। जो आपका अभी आईडी का टाइम हो गया वो ले ले, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, आईडी वाल भी आप जरूर जावांगे, बट उस तो पहले अपने नाल कॉलर जुड़े ने और सवाल पूछना चाहते ने थानू। जी जी जी। हेलो सब्रवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सब्रवाल जी, उन्होंने एक और लाइन बोली है, उन्होंने कहा था कि वो महंगाई को 2% पे ला के रहेंगे और वो तैयार भी रहेंगे, अगर ये 2% पे नहीं आई तो वो फिर इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको ये कहा ना कि 2% हम लोग इन द बिगिनिंग ऑफ 2024 कर रहे हैं, और बाई द थर्ड क्वार्टर मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले वो 3% उन्होंने भी कहा, और मैं भी उन्हीं की बात को रिपीट कर रहा था कि वो कह रहे हैं कि मिडिल एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर तक वो 3% की उम्मीद कर रहे हैं, और बाय द बिगिनिंग ऑफ 24 2% की। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सर, उन्होंने ये बात कही और मैंने अभी भी 10 मिनट पहले बात कही है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ भाई साहब कि उसके अंदर क्यों दम क्या है उनकी बात के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो मॉर्गेज ड्रिवन जो इन्फ्लेशन था ना वो रुक गया। अब जो मॉर्गेज की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था ना उसमें बहुत बड़ा एक रुकाव आया है, इसलिए उम्मीद हो चुकी है कि अब ये इन्फ्लेशन जो है बहुत जल्दी नीचे आएगा, ये मानना है सर। जी जी बिल्कुल। स्टेशन आईडी तो बाद च दोबारा फिर कंटिन्यू करांगे, एंड मैं स्टूडियो का नंबर दोबारा फिर अनाउंस कर देना चाहूंगी एक बार साਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 9052269109 9052269109 ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਪੀਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। जी मेरा नंबर है 6472994757। आई रिपीट, मेरा नंबर है 647, डायरेक्ट नंबर है ये। आप मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज डाल के अपना मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे को कॉल मत करिएगा क्योंकि मेरा फोन फॉरवर्ड होता है ज्यादातर, बिकॉज ऑफ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स। मेरे बड़ा मुश्किल हो जाता है जो फोन पे लाइव बैठना, और मतलब कि लगता है जैसे जिंदगी हल हो गई है, तो मेरे को फॉरवर्ड करना पड़ता है। मेरे ऑफिस में जाता है, आई गेट मैसेजेस, देन आई कॉल बैक। 64729944757 64729944757। यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज डाल के अपना नाम मुझे भेज सकते हो और आई विल कॉल यू बैक विद इन 24 आवर्स। एंड ऑल्सो फॉर एनी प्रोजेक्ट, एनी इन्वेस्टमेंट, फॉर एनी अपॉइंटमेंट्स यू कैन टेक्स्ट मी ऑलवेज विद योर नेम। मेरे को अक्सर मैसेज आता है, आप अभी मेरे को एक मैसेज आया, व्हेन कैन आई मीट, बस ये लाइन आई है, ना नाम है ना कुछ है, तो मैं उसको क्या बोलूं भाई, क्यों मिल रहे हो, क्या है, एटलीस्ट आई शुड हैव योर नेम और ईमेल एड्रेस। तो प्लीज जरा कंप्लीट मैसेज भेजा करिए, उससे आपका भी टाइम बचता है और हमारा भी टाइम बचता है। जी जी अमन जी। जी जी बिल्कुल पीके जी, एंड आप कंटिन्यू करते हैं। मेरे को एक होर सवाल है थोड़े लिए, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? व्हाट वुड यू सजेस्ट अबाउट दिस? या दिस इज द राइट टाइम टू बाय, दिस इज द राइट टाइम टू सेल। जरा अगर बायर कहना जी मैं अभी और रुकूंगा, वो समर के अंदर गर्मा गर्मी के अंदर प्रॉब्लम में जाएगा। अगर कोई ये कहता है कि जी आगे इंटरेस्ट रेट कम होना है तब लूंगा, तो भाई आज भी ले लोगे तो भी इंटरेस्ट रेट अगर वेरिएबल लोगे तो नेचुरली आपका भी गिरेगा, तो उसकी तो परवाह नहीं है। लेकिन उस वक्त जब प्राइस बढ़ गया तो वो तो नहीं गिरेगा।
तो इसलिए आपको जो लेट होना है उसमें आपको नुकसान है। इसी प्रकार सेलर की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं बायर को कहता था कि लास्ट मोमेंट तक वेट मत करो, उसी प्रकार मैं सेलर को कहना चाहता हूं कि आप लास्ट मोमेंट तक वेट मत करो। अब आपका टाइम है कि आपको अभी इमीडिएट बेच देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मार्केट में बिडिंग वगैरह शुरू हो चुकी है और इस वक्त मल्टीपल ऑफर आ चुकी है। इफ द प्राइस इज राइट, ज्यादा लालच मत करो। ज्यादा लालच के चक्कर में यही होगा, जो मिलना है वो भी नहीं मिल पाएगा आपको। तो इट इज ए फेयर मार्केट। मेरे को यही सलाह है कि आप मार्केट में आ जाइए। ये तो मैं बल्कि पिछले 2 महीने 3 महीने से ये बात कह रहा हूं कि मार्केट में आ जाइए। जिन्होंने उस वक्त लिया वो फायदे में रह गए, जिन्होंने उस वक्त बेचा वो भी फायदे में रह गए। तो इसलिए राइट टाइम में राइट एक्शन होना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल। और एक मैं चीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी, बायर्स की मार्केट जिसे कहते हैं हलचल शुरू हो चुकी है। बायर्स की मार्केट में हलचल शुरू हो चुकी है। डोंट वेट, इफ यू आर अप्रूव्ड गो अहेड, स्टार्ट बाइंग, स्टार्ट लुकिंग अराउंड एंड जिसे कहते हैं इसमें आप पहले अपने आप को प्रूव कराइए, क्योंकि मल्टीपल बिडिंग के अंदर अगर आप कंडीशन डालेंगे तो आपको घर मिलने के चांसेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अमन जी, मैंने मान लो घर बेचना है और मेरे पास 4 ऑफर आई हैं। 3 ऑफर वाले कहते हैं जी मेरी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज है, और एक कहता है जी मेरी मॉर्गेज अप्रूव है। मैं किसको बेचूंगा? मैं उसी को बेचूंगा जिसकी फर्म ऑफर है। चाहे मुझे 10,000 कम बेचना पड़े, मैं उसको बेचूंगा, क्योंकि मेरी डील आज फर्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं विद कंडीशन बेचता हूं तो कल को 5 दिन 6 दिन 7 दिन के बाद अगला कह सकता है जी मेरी तो मॉर्गेज नहीं हुई जी, मेरा तो मकान दोबारा मार्केट में आ जाएगा। जब मेरा मकान दोबारा मार्केट में आ जाएगा वो एक किस्म से बदनाम हो जाएगा, उसका प्राइस और भी कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं कभी भी चांस नहीं लूंगा मल्टीपल बिडिंग के अंदर कि मैं किसी कंडीशन को भी बेचूं। तो इसलिए बायर को मेरा एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं एक किस्म से उनको एक टिप है आज का, कि आप अपने आप को पहले प्रूव करा के रख लीजिए और उसके ऊपर ना जाइए, ताकि आप बिडिंग के अंदर जीत सके। लेकिन एक और बड़ी भारी सलाह है कि बिडिंग के चक्कर में आप ओवर प्राइस मत दे दीजिए, राइट प्राइस के ऊपर मत जाइए, क्योंकि ये बिडिंग वार हम बायर को खा जाती है। आपको बिडिंग वार में जाना मंजूर है, लेकिन राइट प्राइस के ऊपर। कई बार ये लो प्राइस में लिस्ट करके एक्चुअल प्राइस भी ऊपर ले जाते हैं बिडिंग वार में, आपके इमोशंस के साथ खेलकर। वो मत करिएगा। आप अपने रियल्टर से बात करिए, राइट प्राइस में जाइए। 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैंने देखा 1-1 लाख ऊपर चले गए, बाद में बैंक ने भी अप्रेजल में दिक्कत डाल दी, लोन नहीं मिला। ये काम मत करिए, ये मेरी सलाह है। राइट प्राइस के ऊपर मत जाइए, अपने मार्केट सेटल हो जाती है। जी, इसके ऊपर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी जो 6 अप्रैल को फोर्ड गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया न्यू लेजिस्लेशन, क्योंकि आप होम बायर की बात कर रहे थे तो उसमें मेरे को याद आ गया। तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप बीच में मेरे को अगर रोक सकती हैं अगर कोई कॉल आती है तो आई विल कंटिन्यू। जी, कॉलर है ने तो अपने नाल जुड़े हुए ने, उन्होंने सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। जी महमूद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, गुड आफ्टरनून पीके साहब। गुड आफ्टरनून सर। जी, आपसे सवाल था वो रेगुलर कॉन्डोज के मुताल्लिक कि वहाँ पे जो रेंटल गारंटी है, अगर आप प्रिंसिपल रेजिडेंस रखते हैं तो वो उस सूरत में क्या पोजीशन होगी? नहीं सर, गारंटी नहीं है। मैंने तो गारंटी कहा ही नहीं। हमने ये कहा है कि बिल्डर से हम आपको $3,000 महीना दिलवा लेंगे और रेंट भी आपका। रेंट तो हम देते हैं ना, ये रेंट हम आपका किराए पे चलाएंगे फ्री, नो चार्जेस। मान लीजिए आप रहते हैं खुद, आप रेंट पे नहीं देते, आपका अगर 2 बेडरूम या उससे बड़ा है, हम आपको फिर भी $3,000 महीना बिल्डर से दिलवाएंगे फॉर नेक्स्ट 24 मंथ्स। जी ठीक है, सही है। अगर आप खुद रहते हैं, देखिए आप तो फ्री रह गए ना, आपका खर्चा ही नहीं है 3,000 का, और आपको 3,000 हमने बिल्डर से दिलवा दिया 24 महीने के लिए। तो आप 2 साल के लिए फ्री रह रहे हैं, और वो भी 2030 तक। महमूद साहब, कोई कम टाइम नहीं है, कम अरसा नहीं है, 7 साल। और आप क्या सोच सकते हैं कि 7 साल तक कीमत नहीं बढ़ेगी? सवाल ही नहीं उठता। मेरी जिंदगी में तो कभी आज तक हुआ नहीं, 50 साल हो गया लगभग मेरे को, मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ कि 7 साल तक कीमत ना बढ़े। 1.5 साल तो मैं मान सकता हूं, पर 7 साल कीमत ना बढ़े। सर, अगर 2% भी इन्फ्लेशन के हिसाब से भी अगर कीमत बढ़ जाए तो 7 साल के अंदर अगर कंपाउंड करो तो ये 14 नहीं बनता सर, ये 20 बन जाता है, 20%। और आपने पैसे दिए हैं 15%, तो आपका पैसा डबल से ज्यादा हो गया 7 साल के अंदर बिना कुछ किए। अभी तो चाबी भी नहीं मिली। तो आप अगर खुद रहते हैं तो बात खत्म, फिर भी मिल रहे हैं। अगर आप रेंट पे चढ़ाते हैं, मान लीजिए मैंने आपको रेंट पे चढ़ा के दिया, आपने मेरे थ्रू लिया और नो चार्जेस फ्री, मैंने रेंट पे चढ़ा दिया, और मान लीजिए आपको 4,000 महीने का रेंट आ रहा है, उसके ऊपर आपको हम 3,000 बिल्डर से भी दिलवा रहे हैं।
आपके एग्रीमेंट में लिखा जाएगा, बकायदा आपको 7,000 महीना मिल गया। और आपके एग्रीमेंट में आपको दिखाएंगे कि कहां पर बिल्डर ने कमिटमेंट की हुई है, प्लस आपकी क्लोजिंग के ऊपर आपका मेजॉरिटी ऑफ योर एक्सपेंस हम बिल्डर से दिलवा रहे हैं। $20,000 क्लोजिंग में आपसे बिल्डर से हम क्रेडिट करवा देंगे, तो आपकी क्लोजिंग कॉस्ट को बहुत बड़ा असर हो गया। और बहुत हाई एंड जो एरिया है, हुज हु वहां पर रहते हैं, ज्यूइश कम्युनिटी बहुत रहती है वहां पर, जाके देखिए सेंट क्लेयर और बाथरस के ऊपर, आपको शायद जानते हो उस एरिया को जी। 5, 7, 8, 10 मिलियन से कम का वहां को घर ही नहीं है। मैं आपको हुज हु बड़े बड़े, मैं नाम रेडियो पे कह लूं, आपको घर उनके दिखाऊं जिनके लिए हम साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए तरसते हैं। उनके साथ आपका आना जाना हेलो होगा, एलिवेटर में उतरते हुए हेलो होगा, नीचे उसका बुटीक, रेस्टोरेंट, होटल बड़ा अच्छा खोल रहा है उसी बिल्डिंग के नीचे। मैं जिसे कहते हैं, मैं खुद भी मैंने लिया है अपने लिए। तो मतलब मेरा कहने का है कि इट इज नॉट ए बैड थिंग। आप मेरे को मामू साहब अपना टेक्स्ट मैसेज डाल के मेरे नंबर पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, मैं आपको उसकी डिटेल भेज देता हूँ और आप मुझे थर्सडे कल या सैटरडे मिल सकते हैं। और जरूरी नहीं है लेना, पहले बैठ के समझ लीजिए, अगर तसल्ली हो तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जी ठीक है। अगर आप आपके थ्रू रेंट पे देते हैं तो आप कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट चार्ज नहीं करेंगे? नहीं, हमारा कुछ नहीं होता सर, हमारा जीरो है। हमारे पास जब आप हमारे थ्रू लेते हैं तो हमारे साथ आप जिंदगी भर फ्री काम करते हैं। ठीक है। हमारा जो ऑफिस का डिपार्टमेंट है, लीजिंग डिपार्टमेंट, उसके ऊपर हम काम दे देते हैं। इसके अलावा और क्या क्या सरप्राइज है मैं आपको ऑन एयर नहीं बोल सकता, क्योंकि फिर मुझे ना हमारे कंपटीटरों से गालियां पड़नी शुरू हो जाती हैं और अंदर से मैं बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि कंपटीशन में वो अपने आप को हारा हुआ मानते हैं, तो इसलिए वो गालियां देने बैठ जाते हैं। क्या क्या मैं आपको सरप्राइज दे सकता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे जब मिलेंगे। तो लाइफ लॉन्ग मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ फ्री काम करेंगे, ये मैंने आपको हिंट दे दिया, एक लिख के देंगे हम आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। जी मैंने कहा थैंक यू वेरी मच जी आपके टाइम। थैंक यू महमूद साहब, जब भी मिल लीजिएगा, जब दिल करे आपका। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू जी। जी बिल्कुल जी अमन जी, जी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस में ऊपर वाले का आशीर्वाद है, अलग डिपार्टमेंट है, लीजिंग डिपार्टमेंट अलग है, रीसेल का डिपार्टमेंट अलग है, प्री कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट अलग है, कमर्शियल का डिपार्टमेंट अलग है, लॉ डिपार्टमेंट, हमारा लॉ ऑफिस, हमारे ऑफिस के अंदर इन हाउस लॉ ऑफिस है, हमारे ऑफिस के अंदर इन हाउस मॉर्गेज का डिपार्टमेंट है। सॉरी, जस्ट 1 मिनट जी। तो ये हमारे ऑफिस में सारे इन हाउस डिपार्टमेंट की वजह से इसका सारा बेनिफिट्स जो है ना हमारे क्लाइंट्स को हो जाता है, जो जिनके लिए हमारे पास लाइफ लॉन्ग सर्विसेज देने का हमें मौका मिलता है और दे एंजॉय अवर सर्विसेज। जी जी बिल्कुल। और मैं एक और सवाल थोड़े तो पीके जी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह ओंटारियो गवर्नमेंट का बिल आया सी अप्रैल 6 ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ। जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ, यही मैं बात करने वाला था। 6 अप्रैल को आया था फोर्ड गवर्नमेंट का, ओंटारियो सरकार का, और लेजिस्लेशन में जो उन्होंने कहा था विच विल हेल्प बिल्डिंग 1.5 मिलियन न्यू होम्स इन 10 years while providing support to Ontario landlords and tenants। इस बिल का जो नाम था वो एक जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ी सी मैं पानी साथ में पी रहा था। तो इस बिल का जो नाम था वो था जी होम बायर्स प्रोटेक्टिंग टेनेंट्स एक्ट, द हेल्पिंग होम बायर्स प्रोटेक्टिंग टेनेंट्स एक्ट। इसके अंदर क्या था वो जो अभी उन्होंने कहा है, प्रपोजल आई है, जिसमें जिसे कहते हैं, मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूं अपने लिसनर्स को कि एक तो वो 6.5 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एडजुडिकेटर्स जो है एंड स्टाफ बढ़ाने के लिए लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स बोर्ड, क्योंकि इसकी डेटें वो 6 महीने लंबी चली गई हैं, जल्दी फैसला हो इसके लिए वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाउसिंग अप्रूवल के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए एंड टू बिल्ड होम फास्टर, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और एस्पायरिंग जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं बाई एक्सपेंडिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स, जो आपको मैंने बताया था पिछले हफ्ते भी की, उसके अंदर जो आपका जो 8,000 साल का अप टू मैक्सिमम 40,000 आप अपना डिपॉजिट टैक्स फ्री जोड़ सकते हैं और उसमें आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो मेन पॉइंट है वो ये है कि to bring more affordable supply to market sooner through new tools। अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी से डिस्कशन चल रहा है
और जो मैंने पहले बताया डबलिंग एजुकेटर्स एंड स्टाफ ऑफ लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड LTB वाया 6.5 मिलियन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ओंटारियो रेंटर्स के लिए ना उनकी प्रोटेक्शंस के लिए काम किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी है, सबसे अच्छी बात है फॉर फेयर हाउसिंग, फाइटिंग फॉर फेयर हाउसिंग, क्योंकि ये रेंटर्स को निकाल दिया जाए सेलिंग के बहाने, किसके बहाने, वो कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए फेयर कोई ना कोई रूलिंग आनी चाहिए। उसके ऊपर फाइन भी वो डबल कर रहे हैं लैंडलॉर्ड्स के ऊपर जो रूल्स को ब्रेक करते हैं। और टेनेंट्स की हेल्प के लिए टू रिमेन हाउस ड्यूरिंग हार्डशिप्स, और टेनेंट्स को टू एजुकेट बेटर फॉर देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर वो काम किया जा रहा है जी। और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस कवरेज फॉर फर्स्ट टाइम होम सेविंग्स अकाउंट एट क्रेडिट यूनियंस वगैरह, ये जो मैंने पहले बताया कि इसके ऊपर आप पैसे फर्स्ट टाइम होम के लिए आप पैसा सेव करेंगे टैक्स फ्री, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये कुछ बातें अच्छी हैं। टिम हुडक साहब जो CEO है ओंटारियो रियल एस्टेट एसोसिएशन के, उनकी स्टेटमेंट थी और इसके ऊपर हमारा जो हमारी एसोसिएशन है ये बहुत देर से काम कर रही थी ओरिया ओंटारियो रियल एस्टेट एसोसिएशन, तो इसके अंदर कई बातें इनकी मानी गई। दिस इज व्हाट आई थिंक यू आर आस्किंग फॉर, राइट? जी बिल्कुल। एंड अपने ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੁਣੇ ਆਈ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਹੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਨ ਐਂਡ ਮੇਜਰ ਆਪਣੇ ਪਾਈਨ ਵੈਲੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਸਾਰੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। 1.8+ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੋਮ ਸੀਗੇ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ 3-4 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੈਂ ਖੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ 11 ਵਜੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਿਊਜ਼ ਆਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਜੀ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਵਾਰੰਟੀ, ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੈਠੇਗੀ ਟਰਸਟ ਬੈਠੇਗੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ ਅਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਹੋਲਡ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪੂਰੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ CP24 ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10-15 ਘਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 70-80 ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਲ ਜਾਏ। ਹਾਂ, 10-15-20 ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ 20-15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਲੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਇਰਸ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਸਰ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਦਰ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫੋਨ, ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਦੋਂ ਸੀਗੀ? ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਉਹਦੀ ਆ ਫਾਲ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 23 ਦਾ ਫਾਲ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ 20 ਨਹੀਂ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆਫ 23 ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਡਿਗਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ।
मेन कम हैगा ग्राउंड तक अगर आ गए ने उन्होंने अगर फाउंडेशन अंदर पाती हैगी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪਾਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਪੱਧਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ और फ्लैट किया हुआ लैंड सो फार। हाँ यानी कि उन्होंने उसके अंदर जो सुवर सिस्टम ये सिस्टम वो सारी मार्किंग हो गई है तो यानी कि थोड़ा उधर कम जो है 1/3 हो गया। उसके बाद जब बेसमेंट तक चला जाए जब फाउंडेशन बन जाएगी तो थोड़ा 2/3 हो जाएगा। उसके बाद 1/3 रह जाएगा उत्ते बनाने वास्ते तो सिर्फ उन्होंने 5 महीने चाहिए सिर्फ। ठीक है सर पर उन्होंने हुण अगली स्प्रिंग का टाइम ले लिया 24 का। हाँ जी बस फिर इसका मतलब कि वो जो ग्राउंड प्लेन किया है उन्होंने 1/3 ही कम लगभग किया है 2/3 रह गया मतलब उन्होंने कम जी। हाँ जी थैंक यू सर गुड लक टू यू थोड़ा से चंगा हो गया मेरे ख्याल। हाँ जी आई होप जब तक इंटरेस्ट रेट भी थोड़ी जी गिर जाएंगे तो थोड़ा से चंगा हो गया सर बहुत चंगा हो गया थोड़े वास्ते। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर जी बिल्कुल आप जी अमन तो मेरे ख्याल से इनको कंक्लूड किया जाए लास्ट कमेंट्स देके आपने कोई कॉल लेनी है जी मैं स्टूडियो का नंबर दोबारा फिर अनाउंस कर देनी है अगर कोई होर कॉलर भी अपने सवाल जो है पूछना चाहते ने कॉल कर सकते ने एट 9052269109 9052269109 ते एंड पीके जी मैं जरूर चाहूंगी कि टिप्स जो तुसी सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ लेके आने होने वो भी जरूर शेयर करो सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। जी बस मेरा टिप तो हमेशा वही चलता है कि आप सिर्फ दुनिया के पीछे ना चलो कोशिश करो कि लोग तुम्हें फॉलो करें। जब आप लोगों को फॉलो करते हो तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। जो अगला कर रहा है वो कर रहा है वो गलत कर रहा है मार्केट गिर रही है लोगों ने बेचने बंद कर दिए आपने भी बेचने बंद कर दिए लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए आपने भी खरीदने शुरू कर दिए। भेड़ चाल मत करो। मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं जी मेरे दोस्त खरीद रहे थे इसलिए मैंने खरीदना शुरू कर दिया अब मैं फंस गया हूँ। मेरे दोस्त बेच रहे थे इसलिए मैंने भी बेच दिया अब मैं फंस गया हूँ। तो इसीलिए एक्सपर्ट से बात करो प्रोफेशनल से बात करो अपना रास्ता खुद बनाओ दुनिया तुम्हें फॉलो करेगी। ये मेरा मानना है यही मैंने जिंदगी भर किया है। तो मैं तो उल्टा करता हूँ जी जब दुनिया बेच रही होती है मैं खरीद रहा होता हूँ। जब दुनिया खरीद रही होती है तो मैं अपने घर बेच रहा होता हूँ। जो अपने घर मतलब मेरा प्रिंसिपल घर नहीं मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ। जब दुनिया खरीद रही होती है अति हो जाती है तब मैं बेचता हूँ ठोक बजा के और जब दुनिया बेच रही होती है तो मैं ठोक बजा के खरीदता हूँ जब अति हो जाती है एंड में अति में। तो ये मेरी पॉलिसी है अपना आगे देखो नहीं समझ आती मुझे मिलो मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। 3 दिन हफ्ते में मिलता हूँ एवरी मंडे एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे विद अपॉइंटमेंट्स ओनली नो वॉक इन। मेरा नंबर ले लीजिए मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए नाम जरूर लिखिएगा प्लीज बिना नाम के मैं कॉल बैक नहीं किया करता। अपना नाम जरूर लिखिएगा और प्लस किसी को मेरे प्रोजेक्ट रेगुलर के बारे में और लेना हो इंक्वायरी तो वो मुझे नाम लिखें अपना सादे ईमेल एड्रेस भेजें तो मैं उनको सारी डिटेल भेज दूंगा। अपॉइंटमेंट बनानी है तो लिख दीजिए अपॉइंटमेंट नीडेड तो आपको मेरे ऑफिस से कॉल आ जाएगी अपॉइंटमेंट बन जाएगी एज पर योर कन्वीनियंस। विल सिट डाउन डिस्कस उसके बाद अगर आपका मूड बने आगे काम चलिएगा नहीं तो वी नेवर कॉल यू बैक। आपका कोई अपना भी दोस्त रिश्तेदार है उससे काम कर लीजिए। वी विश यू गुड लक। तो मेरा नंबर है 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। You can also visit teamsabarwal.com। एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि your present defines your future। ये ध्यान रखिएगा जो आप आज कर रहे हैं आप अपना फ्यूचर खुद देख रहे हैं। तो इसीलिए देर मत करिए सोचिए प्लान आज ही करिए तभी आपका फ्यूचर बनेगा। बिना आज कुछ किए आप क्या आज कर रहे हैं समझ लीजिए आप वही अपना फ्यूचर बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अमन एंड टॉक टू यू नेक्स्ट वीक। जी श्योर थैंक यू सो मच पीके जी फॉर ज्वाइनिंग अस इन रेडियो वाई FM 91.9। थैंक यू सो मच।